रहे हैं. We will wait for few minutes, few seconds only actually. So good evening all of you. जितने भी लोग टाइम पे जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है. I will request you please start your cam ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊं. आप लोग बहुत स्पेशल लोग हो मेरे लिए जो टाइम पे जुड़ते हैं और हम हमेशा कहते हैं जो समय की कदर करता है समय उसकी कदर करता है. तो आप शार्प 7 बजे ज्वाइन करते हो आप पाठशाला को ईच एंड एवरी टाइम. विनोद जी वेलकम. रश्मिकांत जी नमस्कार. प्रदीप जी गुड गुड गुड. विनोद जी को एडमिट कर लो. ધ્રુવિક ભાઈ ફ્રોમ અમદાવાદ કેમ છો ભાઈ? મજામાં મજામાં. ચલો ધવલભાઈ રૂપેરા गुड गुड गुड. तो 1 मिनट वेट करेंगे हम श्रेया, फिर हम प्रेयर शुरू करेंगे. कुछ लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं, ईयर एंड की तैयारी कर रहे हैं. तो काफी लोग बिजी हैं ईयर एंड को सेलिब्रेट करने के लिए. दिनेश भाई वेलकम. राजेंद्र जी वेलकम. प्रदीप जी काफी दिनों के बाद. गुड. नीरव शाह वंडरफुल. या श्रेया काफी लोग अपने वी क्रॉस द 50 नाउ. आप सबका ऑफिशियली स्वागत करके प्रेयर को शुरू कर सकते हैं. तब तक और लोग ज्वाइन हो जाएंगे. Sure. So good evening everyone. Welcome to the financial party. Hope you're doing well. Hope you're enjoying this party vibes, the Christmassy vibes everywhere. Hope you're enjoying it. And we are back with our investors special session, which we have once in a month on every fourth Thursday of the month, where we bring a new book and we discuss the ideas around it. So hope you're excited for this book. And we are all set to begin with the session. But as you know, like before we start our session or anything we start over here at Next Level, we follow this ritual of saying our prayers. So these prayers basically represent us, our culture, our ideologies, things we believe. We say these prayers, we believe these prayers, we work on these prayers, and these prayers are very special to us. And yes, I would request you to join me in this. And yes, we will go ahead with the prayers. And I would request you to place your right hand on your heart and say along with me. We are on a mission to educate people about financial literacy and empower them to live a financially confident and stress-free life through our scientific money management process. We are in the world's best and noble profession because we prosper when our clients prosper. We are followers of client first, win next, and win principle. We always ensure that our clients get the right amount of money available to them at the right point of time through our scientific money management process. We follow all professional ethics with full integrity. We have a clear intention to create wealth and abundance that our clients can achieve all their dreams, goals, and needs. The only way we can become successful is by adding massive value in the marketplace to our clients, to our organization, and to all our stakeholders. We always inspire, empower, and make a difference in people's lives, wherever we go and whomever we meet. We work because we choose to and not because we have to. We empower people to live their desired lifestyle by helping them to achieve financial freedom. Yes, with this, we are all set for today's session. But as I was telling you, today's session is all about books. So let's talk a little bit about books. So whenever we think about reading books, we always feel that, if I've picked up this book to read, I need to finish it from the first page to the last page. But honestly, that is not how book reading is, really. Even if you bring one great idea out of that book, you are a reader and you have read that book. And this is something which our speaker, which is something he believes and he says, and I'm personally very inspired by this, and it does work.
And yes, with that, our speaker for today is our very own booklet guy, Mr. Amrit Deshmukh. Yes, he's on a mission to make India read. He has inspired loads of people to read, and he is a TEDx speaker. He has won the Youth Icon Award, and he has done some amazing work on books, and even has an app called the Booklet app where he has made some amazing summaries of books. And yes, he's really, really inspiring. And today he would be sharing with us the ideas from a very, very interesting book, a book on Mahatma Gandhi, the facts, unknown, surprising facts about Mahatma Gandhi. So hope you're excited for this. I am really, really excited for this. And yeah, I would request Amrit sir to come on the screen and take the session ahead. Thank you. Thank you so much, Reha. What an enthusiastic introduction. I hope I'm loud and clear. Yeah? Yes, perfect. Perfect. Awesome. Thank you so much, Next Level Pathshala, for considering me as a deserving candidate to come and inspire you to cultivate reading habit. I'll just adjust my screen so that I can. Yeah. Awesome. Glad to see everybody has switched on their camera. Nowadays, criticizing Gandhi has become a fashion. I know. नोट पे गांधी जी दिखते हैं, ट्रेन पे गांधी जी की ऐनक दिखती है, एयरपोर्ट पे गांधी जी का चरखा दिखता है, बट वी ऑल नो समवेयर डीप इनसाइड नो सब लोग गांधी जी को गाली देते, राइट? एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दिस. I know many of you may not be believing in his philosophy, criticizing him for the blunders that he has made in his career. He is responsible for the partition between India and Pakistan, etc., etc. But what I believe is, if somebody is even 1% better than me, 1% more successful than me, 1% happier than me, and if I'm focusing on his mistakes, which could be 10% of his total career, then it is my narrow, myopic way of looking at his career, his success. It's like there's a huge whiteboard and there's a black dot, and I ask you, what do you see? And you say it's a black dot, and ignoring the 9-10% of the whiteboard. Yeah. So there is no point in criticizing, because criticizing and learning, I believe, are mutually exclusive. They can't happen at the same time. If I decide to criticize somebody, it is impossible to learn from that person. And if I decide to learn, it really gets difficult to criticize. It's like a teacher-student relationship. If I start criticizing my teacher, it's impossible to learn from him or her, right? So I think we books are overrated. Yes, I am saying this, booklet guy of India, that books are overrated. We mistake people with books. I think it's just a stupid medium to meet the people behind the book. All right. So we give too much of importance to the book. It's actually people. Yeah. If you are with me in my house, you'll never see me reading a book, because then I will be denying an opportunity to read an unwritten book of yours, because everybody doesn't write a book. If I don't listen to you, don't ask you questions to learn from you, then I'm missing an opportunity, right? So I'll be reading a book only when I'm alone, when nobody's around me, and then I'll meet such great people and learn from them. Yeah, so I think we always learn from other people, and books to me is a very safe bet, because if I want to learn how not to procrastinate on important things, and if I take a tip from my friend, that may not be the best tip. Whereas people like Adam Grant and James Clear and Napoleon Hill, who have done 10 years of research on such narrow topic called procrastination, if I take help from them, then I think I'm in a much safer position than taking a passing comment from a friend who is not an expert in that. Yeah. So authors for me are mentors and not just advisors. Coming back to today's topic, untold stories of Mahatma Gandhi.
some interesting facts about Gandhi ji. Do you know he's the only author who writes in his preface that if at all you come across two different opinions in my own book, please consider the second one. Look at the humility of this man. I have not seen any author writing this in the preface of his book, that I might contradict my own view. If at all you come across some conflicting views, please consider the recent one, the latest one. And this is so funny, and that shows how humble that man was. That leads me to another interesting book called The Scout Mindset. All of you should read this book, The Scout Mindset, uh, because you know, changing our mind is considered as weakness, right? For example, maybe 1 year ago, I was a hardcore meat eater, and then now I'm moving towards veganism. For example, I'm gradually quitting meat and non-veg, and I just shared this view with my friend, and she said that वाह रे वाह 100 चूहे खाके मुल्ला चला हज पे, ऐसा उसने मुझे कमेंट किया. So this is basically we think that changing our mind is not a sign of power, it's a sign of weakness, right? But let me tell you, जब आपके मोबाइल पे कोई अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट, आईफोन या एंड्रॉइड का कुछ अपडेट आता है ना, व्हाट डू वी से? अरे कुछ नया अपडेट आया है, चलो कुछ नया फीचर रहेगा, बेटर सॉफ्टवेयर रहेगा तो उसको अपडेट कर लेता हूँ. डू वी से अच्छा नया अपडेट आया, मतलब पहले वाला जो था उसने मेरे को उल्लू बनाया, अब तक मेरे को उल्लू बना रहे थे ये लोग, ये तो चेंज कर रहे सब, तो पहला वाला बकवास था, उन्होंने मुझे फंसाया है, ऐसा हम नहीं बोलते. इट इज जस्ट एन अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर. पहला वाला भी अच्छा था, बट जो अपडेटेड है इज बेटर with some better features than the older version. But when it comes to our changing our mind, when I say that yes, 6 months ago my opinion was point A because I did not possess a certain piece of information, today I am changing my opinion from point A to point B because I have that new piece of knowledge, new piece of information. Don't you think this is growth? Don't you think this is what is needed? This is evolution. And that's why the motto of the whole Mission Make India Read का जो foundation है is based on one line, that if I'm not reading, I'm not changing, and if I'm not changing, I am not growing. और ये जो बीच वाला word है ना, changing, ये वही सब कुछ है कि changing your old beliefs and replacing them with the new ones, changing your old ideologies with the new ones, changing your old habits and assumptions with the new ones. तो क्या हुआ मालूम है? The moment we meet a person who has a different belief system or talks something opposite of me, हम तुरंत उसको रिफ्यूट कर देते कि नहीं तू ऐसा कैसे बोलता है, ये ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, पूरा देश दो चीजों में बढ़ गया है, मोदी एंड एंटी मोदी. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अभी सपोज मैं दोस्त को मिला हु इज एन एंटी मोदी गाय, वो मेरा दोस्त है, और फिर वो मोदी के अगेंस्ट बोलने लगता है, और फिर हम क्या करते हैं, अरे क्या पागल है, का इतना अच्छा इंसान है, देखो कितनी तरक्की हो रही है देश की वगैरह. नो, वी ट्राई टू कन्विंस हिम कि यू आर रॉन्ग. दैट विल ओनली रीइंफोर्स हिज ओपिनियन अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, एंड unnecessarily I will lose a friend perhaps. उससे अच्छा है, why not just listen to him with the intention कि एक अपॉर्चुनिटी है to understand मोदी with a different angle. एक अलग नजरिए से मुझे मोदी देखने को मिलेंगे, and why is he saying what he is saying? Let me understand him कि why he hates मोदी. बस I may not agree with his opinions, but I can listen to him empathetically. Are you getting my point? बिकॉज मोदी तो सुन भी नहीं रहा है यहाँ पे. हम खाली बजा हम झगड़ा करते हैं, डिबेट करते हैं, आर्ग्यू करते हैं दोस्तों के साथ, राइट? उससे कुछ नहीं होने वाला. आई थिंक द होल्डिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज एट द सेम टाइम इन योर माइंड is a sign of intelligence. I repeat, holding two contradictory views at the same time in your mind is a sign of intelligence. All right? It's very, very important. Arriving to conclusion is very easy.
बट कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तुरंत कंक्लूजन निकाल देते हैं. इंटेलिजेंट पीपल दे डोंट कंक्लूड. अपना देश की जो सिविलाइजेशन है, जो कल्चर है, सीकिंग. इट्स ऑल अबाउट सीकिंग, नॉट अचीविंग. वेस्टर्न फिलोसॉफी टॉक्स अबाउट गोल्स, अचीवमेंट्स. आवर इंडियन फिलोसॉफी टॉक्स अबाउट सीकिंग. सीकिंग इज नेवर एंडिंग. Well, you need not have conclusions always. All right. So having said that, do you know Mr. Gandhi is the only person on planet Earth जिनके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है. He is the most written person on this planet. And you will be shocked to know, even today, every year, at least 25 books are written on Gandhi. Can you believe this? उनको मर के अभी कितने साल हो गए? 74 years. Yeah, he died in 1948. 74 years के बाद भी people are writing on him. मैंने तो I have read more than 70 books on Gandhi, written by Gandhi. Hind Swaraj, India of my dreams, Gandhi struggle for India, Gandhi's struggle with India. बहुत सारे बुक्स है. माई ग्रैंडफादर गांधी करके एक बुक लिखी है अरुण गांधी, हु इज द ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी. उसमें से भी कुछ किस्से इंटरेस्टिंग मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो आपने कभी सुने नहीं है. सो किस्से जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. साउथ अफ्रीका में वो ट्रेन से उनको फेंक दिया, फिर वहां से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट उन्होंने काम शुरू किया, वो सब तो हमको पता है. दांडी मार्च यात्रा वगैरह वगैरह, सॉल्ट एक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब मैं नहीं बातें करूंगा क्योंकि वो हमने सब पढ़ा है इतिहास में, स्कूल में. मैं वो बातें करने वाला हूँ जो बहुत ही कम बोला जाता है. दे आर रूटेड डीप इन सम रेयर बुक्स व्हिच आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स. एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाना चाहता हूँ. एक बार गांधी जी जब साबरमती आश्रम में रहते थे, वहाँ पे सेवाग्राम आश्रम में थे, और आपको पता है वहाँ पे 350 लोग रहते थे एक साथ. सब धर्म, जात, जेंडर कुछ नहीं, 350 लोग एक साथ रहते थे परिवार की तरह. और कुछ किलोमीटर दूरी पे एक औरत रहती थी वहां पे, एंड शी वाज टेंस्ड क्योंकि उसका बेटा बहुत सारा गुड़ गुड़ खाता था. जैगरी जैगरी खाने की उसकी बहुत गंदी आदत थी, पूरा दिन गुड़ खाता था. और माँ बहुत परेशान थी कि अभी क्या करे. उसने बहुत समझाया कि गुड़ खाने से तुम सेहत पे असर हो सकता है. तो उन्होंने सुना कि भाई कई महात्मा जी सेवाग्राम आश्रम में है, ठहरे हुए हैं, तो देखती हूँ, जाके बात करती हूँ, वो कुछ अगर सॉल्यूशन दे इसके लिए और हेल्प करे मेरे बेटे के लिए. तो वो बेटे को लेके जाती है. गांधी जी उनसे मिलते हैं, और वो जो बच्चे की माँ है वो बताती है कि ऐसा ऐसा मेरा बेटा बहुत सारा गुड़ खाता है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी बात सुनता ही नहीं है. आप महान हो, महात्मा हो, तो कुछ सुनेगा आपकी. तो गांधी जी थोड़ा पॉज लेते हैं 1-2 मिनट और बोलते हैं कि ठीक है, पर ना 1 महीने के बाद आ जाना प्लीज, अभी नहीं, 1 महीने के बाद आओ और मैं उसको समझाऊंगा. तो औरत बोलती है ठीक है. फिर वो 1 महीने के बाद आती है बच्चे को लेके. तो गांधी जी बोलते हैं कि हाँ सॉरी सॉरी, लेकिन 15 दिन के बाद आना प्लीज, अभी नहीं मैं बोल पाऊंगा, 15 दिन के बाद आना. फिर वापस वो आती है 15 दिन के बाद, वापस बोलते हैं कि हाँ अभी बस 1 हफ्ते के बाद आना, अभी नहीं 1 हफ्ते के बाद. ऐसा ही फाइनली 1 हफ्ते के बाद वो आती है. और फिर गांधी जी उस बच्चे को एक कमरे में जाके समझाते हैं आधा घंटा, और फिर मिराक्युलसली वो बच्चा गुड़ खाना बंद कर देता है. एंड माँ खुश हो जाती है. वो वापस गांधी जी को मिलने आती है कुछ दिनों के बाद और बोलती है बधाई हो, थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की, वे मेरा बेटा गुड़ नहीं खाता है. तो ये आप 1.5 महीने पहले क्यों नहीं किया आपने? शायद 1.5 महीने जो उसने गुड़ खाया खाया है वो अवॉइड हो जाता. और गांधी जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब, उस जवाब में आई थिंक एक बहुत बड़ी फिलोसॉफी है विच आई हैव पिक्ड अप. और पूरा पूरा जो मिशन मेक इंडिया रीड का जो अप्रोच है वो पूरा चेंज हो गया. आई टेल यू व्हाट ही सेड. गांधी जी ने उस औरत को कहा कि जब आप पहली दफा आए थे बच्चे को लेके और आपने उसका प्रॉब्लम बताया कि वो बहुत गुड़ खाता है, तभी मैंने उसको कोई सलाह नहीं दी, क्योंकि मैं खुद बहुत सारा गुड़ खाता था, मुझे भी वो आदत थी बहुत सारा गुड़ शक्कर खाने की. तो आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू प्रीच हिम. Preaching doesn't work, practicing works. I don't believe in preaching, I believe in practicing.
और इसलिए मैंने आपको 1.5 महीने का समय मांगा. 1.5 महीने में आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, tried to quit overeating of good and sugar, and then now I think I deserve to give him an advice again to not to eat good. I think it's a big lesson. और आजकल बहुत मैंने देखा है कि सब लोग एक दूसरे को वो अच्छे अच्छे कोट्स फॉरवर्ड करते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं. आई थिंक फॉरवर्ड इज प्रीचिंग, व्हाट अबाउट प्रैक्टिसिंग, राइट? और जब मैंने मिशन शुरू किया था 5 साल पहले, मिशन मेक इंडिया रीड, तो मैं भी यही गलत माइंडसेट के साथ कि लोगों को पढ़ाना है, इंडिया को पढ़वाना है, पर कहीं ना कहीं खुद मैं नहीं पढ़ता था. मैं बस दिखाने के लिए पढ़ता था. So this is not going to work. I have to become one of those rare, voracious readers who has read more than 2,000 books, who can read at a very high speed. The average reading speed of most of the people is 150 words per minute. I have increased it to 1,200 words per minute. तो मैं दिन में एक किताब खत्म कर लेता हूँ आराम से, 4 घंटे में, 5 घंटे में. जो आमतौर पे लोगों को 4-5 दिन लगते हैं, मुझे 4-5 घंटे लगते हैं. And then become that rare person, by practicing and not by preaching. And then people will be inspired from my actions, not from my words. Okay. एक वैन डायर करके एक बहुत फेमस ऑथर है, उसने एक किताब लिखी थी योर एरोनियस जोन्स, और उसमें एक बहुत अच्छा लाइन उसने लिखा है कि इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर जॉब यू विल मेक अ लिविंग. इफ यू वर्क हार्ड ऑन योर जॉब you will make a living, but if you work hard on yourself you will make a fortune. Yeah. और उन्होंने गांधी जी का उसमें जिक्र किया है. एंड आई रियलाइज कि यस आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, नॉट ऑन मिशन. आपका जो बिजनेस है, एंटरप्राइज है, इट शुड बी जस्ट एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ योर कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी. ऑलराइट. और फिर मैंने मेरे शरीर पे काम करना शुरू किया. आई वॉज ओवरवेट बाय 15 kg. आई स्टार्टेड वर्किंग. मैंने खुद को आईने में देखा कि ये तो बुकलेट गाय नहीं, ये तो बुकलेट अंकल लगता है. हाउ एम आई गोइंग टू अपील द यूथ by these chubby chicks and double chin and flappy arms and office fats popping out of my waist? No, this is not going to work. I rigorously worked hard on my fitness regime, on my diet. Yeah, I know when my friends were partying late night in late night clubs, I locked myself inside the room, underlining big ideas from Robin Sharma and Sudha Murthy, and I became rare. And hence, you now call me as a passionate reader. तो इसमें बताना ये है कि हमको लगता है कि मास्टरी कम्स फ्रॉम पैशन. नो, मास्टरी डजंट कम फ्रॉम पैशन. पैशन कम्स फ्रॉम मास्टरी. आपको पता है पैशन का मतलब हम सबको क्या लगता है? आप अनम्यूट करके मुझे बताओ कि पैशन मतलब आपको क्या लगता है, क्या मतलब है उसका? कोई बताएगा मुझे अनम्यूट करके? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैशन आपके हिसाब से? एनीबॉडी? चलो सुब्रो को अनम्यूट करो. या गोपाल. पैशन जो है, जो चीज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. करेक्ट. और उसके लिए अगर मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा तो कुछ अच्छा नहीं जाता है. मुझे मैं आई कैन डू एवरीथिंग. करेक्ट. ऑलराइट. वेरी गुड सुब्रो. यू कैन म्यूट योरसेल्फ. मैं भी यही समझता था पैशन मतलब डू व्हाट यू लव, डू व्हाट एक्साइट्स यू. वो करने से मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा. मुझे उसके लिए कुछ एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत नहीं. इट्स एन इंटरनल रिवॉर्ड इन इटसेल्फ, राइट? आई वाज सो सरप्राइज्ड टू नो द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पैशन. ओके. ये एक बुक मैंने पढ़ी थी, सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कार्ल न्यूपोर्ट. और ये सब जो बुक्स में क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें गांधी जी का जिक्र है. 90% ऑफ द फॉरेन ऑथर्स जो मैंने पढ़े हैं बुक्स, उनमें गांधी जी का जिक्र है. नेल्सन मंडेला का पूरा मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन गांधीज फिलोसॉफी. ओके. और यहाँ पे हम इंडियंस गांधी जी को गाली दे रहे. आई डोंट नो व्हाई. और उसपे लिखा है सो गुड दे कांट इग्नोर यू बाय कार्ल न्यूपोर्ट. द वर्ड पैशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड पैटी, PATI. इसका मतलब है सफरिंग. पैटी लिटरली मीन्स सफरिंग, वेदना, परेशानी.
दुख झेलना इज कॉल्ड पैशन। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका मीनिंग चेंज हो गया, और आज हमको लगता है कि पैशन में डू समथिंग दैट एक्साइट्स यू। तो रियल मीनिंग पैशन का अगर सफरिंग है, मतलब क्या कि जो भी चीज आप पहली बार करते हो नया रहता है, तो वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो ना। सचिन का पहला स्ट्रोक लाइफ का क्या सिक्सर होगा क्या? ही मस्ट हैव स्ट्रगल्ड। कोच ने उसको डांटा होगा, अरे बैट ऐसे पकड़ के ऐसे स्ट्रेट ड्राइव मारते हैं, ये हुक होता है, अगर हुक शॉर्ट हो गया तो कैच आउट हो जाएगा। उसकी गालियां खा खा के ही वेंट थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ सफरिंग, एंड देन एज अ रिजल्ट, because he suffered a lot in the net practices, we call him as a result a passionate batsman. मतलब mastery stems from passion? No, passion stems from mastery. पहले आपको मास्टर बनना पड़ेगा उसमें, और फिर the world call you as a passionate guy. Are you getting my point? Because I locked myself inside the bedroom and read for hours and hours and hours, sacrificing the festival, sacrificing the parties. Now, as a result, you call me as a passionate reader. It's not the other way around कि मैं पहले passionate reader था और इसलिए अभी मैं master हो गया. No, I first mastered that skill and now you guys call me as a passionate reader. ये उल्टा है. Very interesting, ना? तो अगर suffering करना है, if you have to anyway suffer initially, I'll give you another analogy. Those who drive a car, try to remember the first day of your driving. कैसा था वो ड्राइविंग? मैं तो हालत खराब हो गई थी मेरी कि अरे क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, ये सब संभालना है, फिर हाथ में गियर, फिर वो हैंड ब्रेक भी कभी कभी यूज करना है, अरे बाप रे, और स्टीयरिंग पे ध्यान देना है, हॉर्न भी बजाना है. आई वेंट मैड, आई वाज सो स्कैर्ड. पर आज वो कर करके इट हैज बिकम सो मैकेनिकल कि मेरा एक हाथ बाहर होता है खिड़की के, दूसरा हाथ एफएम पे चैनल चेंज कर रहा है, पैर के इधर क्या चल रहा है मुझे भी नहीं मालूम, अपने आप मैकेनिकल लेवल पे हो रहा है. व्हाई? बिकॉज इनिशियली वी सफर्ड, वी नो वी वेंट थ्रू दैट पेन ऑफ दैट ब्रेन एंड बॉडी का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और इसके बाद प्रोसेस इजी हो जाती है. एंड देन यू स्टार्ट गेनिंग कंट्रोल ओवर द सिस्टम. Because Sachin mastered that stroke, he started gaining control on the system called cricket, and then he starts enjoying it. और फिर हम उसको जो नया मीनिंग है पैशन का, वो बोलने लगते हैं कि भी आई एंजॉय डूइंग इट. मुझे उसके लिए पैसे मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता है. आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन आई एम रीडिंग. मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि खाना खाया है कि नहीं खाया. Are you getting my point? So initially it's all about suffering. अगर इनिशियली सफरिंग है, देन व्हाट यू डू डजंट मैटर. फिर वो आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो, बुक समरी बनाने वाले हो, या टॉयलेट पेपर बेचने वाले हो, डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स है आप कितना उसके डीप जाके सफर करते हो, एंड देन यू बिकम रेयर पर्सन, बिकॉज द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स द रेयर. द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स द रेयर. और सबसे बड़ी चीज मैंने गांधी जी से सीखी है, विच वो जो गुड का जो मैंने आपको कहानी बताई कि यू शुड नॉट प्रीच बट प्रैक्टिस, और उसी के बारे में गांधी जी ने लिखा है कि 99% ऑफ लीडरशिप फेलियर्स आर कैरेक्टर फेलियर्स. आई वाज शॉक्ड टू नो दिस. हमको लगता है ना कि एक सीईओ फ्लॉप हो गया, कंपनी फ्लॉप हो गई बिकॉज कुछ टेक्निकल गलतियां हो गई, डिसीजंस में गलतियां हो गई, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेंट रॉन्ग वगैरह वगैरह, या फिर ओवर लेवरेज हो गया, सब प्राइम की वजह से हुआ. नो, गांधी जी सेज 99% ऑफ लीडरशिप फेलियर्स आर कैरेक्टर फेलियर्स. और ये लाइन मुझे हजम नहीं हुई. जब मुझे कोई चीज हजम नहीं होती तो मैं उसका हाथ धो के पीछे पड़ता हूँ. एंड आई इन्वेस्टिगेटेड. मैंने काफी इसके बारे में गांधी जी ने कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है सब मैंने पढ़ा. जलगांव में गांधी तीर्थ नाम का एक आश्रम बना है बाय जैन इरिगेशन के जो लोग हैं, उन्होंने बड़ा एक म्यूजियम जैसा बना है जहाँ पे आपको गांधी जी का सब कुछ मिलेगा. बुक्स, ऑडियो टेप्स, फिल्म्स, दुनिया की जितना भी है उसके बारे में पूरा वहाँ पे एक कलेक्शन है. एंड आई एवरी ईयर आई गो देयर एंड स्पेंड सम टाइम, and every time I understand something new about Mahatma Gandhi. And coming to the meaning of the word character, have you heard about personality development courses? सुना आपने? सबने सुना है. कभी कैरेक्टर डेवलपमेंट कोर्सेज सुना है?
कभी नहीं सुने। बट हमको पता है कि कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सनालिटी. Now let's try to define what is character from Gandhiji's point of view. Gandhiji says character is what you do when nobody is watching you. या वो गुड़ सीक्रेटली भी गुड़ खा सकते थे ना बेडरूम में बैठ के, देखने वाला तो कोई नहीं है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले अपने आप पे काम किया. कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू एंड पर्सनालिटी इज व्हाट यू डू व्हेन द वर्ल्ड इज वाचिंग यू. कि वो लड़के को एडवाइस देना वाज हिज पर्सनालिटी. वो झूठ भी बोल सकते थे कि बेटा मन ही मन उनको पता है कि मैं तो गुड़ खा रहा हूँ, पर उसको बताने में क्या जाता है, गुड़ खाना बंद कर दे बेटा, अच्छा नहीं रहता है. पर शायद वो इम्पैक्ट नहीं होता. शायद वो लड़का मे बी गुड़ खाना बंद भी कर देगा, बट अंदर ही अंदर ही विल फेल एज ए लीडर. ये वो जानते थे. एंड दैट्स व्हाई he took 1.5 months of time to give him that advice. I think सिंपल स्टोरी है. बच्चों की किताबें भी मैंने पढ़ी थी इसको, but I think we all adults also need to learn from this. Yeah. So it's all about the choices that we make every day. Choice between instant gratification and delayed gratification. Now, what do I mean by this? Character defines your choice between instant gratification activity or delayed gratification activity. Let me elaborate this with an example. See, instant gratification activity मतलब क्या, कि थोड़ा सा कुछ काम किया और उसका जो फल है वो तुरंत मिल गया. वो फल कुछ भी हो सकता है, पैसों का फल हो सकता है, प्लेजर हो सकता है, लाफ्टर हो सकता है, सुकून, आनंद, जो भी है. ओके, 90% हम जो काम करते हैं दिन में वो सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज होते हैं. मैं आपको चलो एक चॉइस देता हूँ. कपिल शर्मा का सीरियल देखना है, स्टैंड अप कॉमेडी देखना है, या जिम में जाके एक्सरसाइज करना. या सी दिस इज अ चॉइस कि कपिल शर्मा देख के मुझे तुरंत हंसी आएगी, मुझे बहुत मजा आएगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगा. लेकिन जिम जाने में मुझे पेन मिलेगा. मुझे पता नहीं कि तुरंत उसका फायदा होगा कि नहीं, उसके रिजल्ट तो जल्दी आते नहीं है, वो तो 1 साल के बाद रिजल्ट आते हैं. उसका ग्रेटिफिकेशन डिलेड है. राइट. सो दैट्स द चॉइस दैट यू मेक विच विल डिफाइन योर कैरेक्टर. ग्रीन सलाद या पाव भाजी, क्या खाना पसंद करोगे? फर्ज करो आप मेरे घर पे आए हो, मैंने आपको ऑफर ऐसे दो चॉइसेस दिए, ग्रीन सैलेड या पाव भाजी. आपका चेहरा बता रहा है कि आपका जवाब क्या है. राइट. तो वी ऑल नो कि लॉन्ग रन में ग्रीन सलाड इज गोइंग टू हेल्प मी फॉर माई हेल्थ. पाव भाजी बस अपने जबान के चोचले को सेटिस्फाई करने के लिए होता है. 0 कैलोरीज, आई मीन एम्प्टी कैलोरीज होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता है. बट फिर भी वी फॉल प्रे टू द थ्रिल ऑफ द मोमेंट, टू द मोमेंटरी प्लेजर. और यही बात गांधी जी हमेशा बोलते थे कि हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो. हमेशा जितने भी डिसीजन लोगे वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर कुछ चॉइस करना है तो लॉन्ग टर्म वाले डिसीजन ले लो. आज जब अपना सेशन खत्म हो जाएगा 8 बजे और मैं अपने बेडरूम में चला जाऊंगा, आप मुझे देखने वाले नहीं हो. तो मैं कुछ भी करूं क्या फर्क पड़ता है? मैं व्हाट्सएप पे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करूं या रॉबिन शर्मा के 4 पेजेस पढूं, तो मेरा चॉइस, दैट चॉइस ऑफ कैरेक्टर will decide whether you guys will appoint me as brand ambassador and invite me as booklet guy to talk to you and I become a source of inspiration to you. आज के सेशन के लिए मैंने कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया है, बस थोड़ा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना पढ़ा है गांधी जी के बारे में. आई डोंट हैव टू प्रिपेयर. दैट मींस आई हैव ऑलरेडी वर्किंग ऑन माय कैरेक्टर डे इन डे आउट. एंड if you work on your character day in day out, you don't have to prepare for your personality separately. तो जो इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं ना लोग, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इफ यू वर्क ऑन योर कैरेक्टर एवरी डे. कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज वाचिंग. हाँ, अगर रोज सुबह उठकर मैं इंस्टाग्राम के न्यूज फीड्स स्क्रॉल करता तो शायद आज मेरा तप हो जाता. गांधी जी के बारे में क्या बोलूं, मेरे को तो किससे याद ही नहीं आ रहे. ऐसा होगा ही नहीं कभी मेरे साथ. सो ऑलवेज फोकस ऑन कैरेक्टर एंड देन a great personality is just a byproduct of good character. Yeah, personality is just a byproduct of good character. All right. एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ था एक बार. मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, लड़कियां रोते रोते
गांधी जी के पास आए और बोले कि ये जो हमारा जो डीन है वो ये मेंढक को काटने को बोल रहा है, और आप तो बोलते हैं कि नॉन वायलेंस इज आवर फिलोसॉफी, तो हम मेंढक को, जिंदा मेंढक को कैसे काटे, ये तो गलत है, ये तो वायलेंस है। तो गांधी जी ने पॉज लिया और बोला कि रुको, मैं जाके आपके प्रिंसिपल से बात करता हूँ पहले। तो गांधी जी गए, मेडिकल कॉलेज के डीन से अपॉइंटमेंट ली, उनसे पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो ये किसके लिए करते हैं। तो देखिए, डाइसेक्शन करना जरूरी है क्योंकि इट रिप्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी। कल जब उनको ऑपरेशन करना है तो हमको उनको सिखाना पड़ता है, तो फ्रॉग को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो गांधी जी ने पूछा कि इज देयर एनी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू अवॉइड दिस डाइसेक्शन ऑफ अ फ्रॉग। तो उन्होंने बोला कि फिलहाल तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो गांधी जी बोले ठीक है। ही केम बैक, मेट द सेम गर्ल्स एंड उनको बोला कि जाओ और बिंदास आप डाइसेक्शन करो, उस दिस इज नॉट, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो सी हाउ फ्लेक्सिबल ही वाज। हमारे मन में जो इमेज थी गांधी जी की, इज वेरी स्टबर्न, वेरी रिजिड, हट्टी है, बहुत हट्टा है उनके, ऐसा नहीं है, ही वाज वेरी फ्लेक्सिबल। एंड ही आल्सो टोल्ड द डीन ऑफ दैट कॉलेज कि द डे that you find an alternative solution, you should then will immediately start avoiding dissection of for live frog and adopt a new technology. See how flexible he was. He said that no, this is not violence, because अगर ये नहीं करेंगे तो 10 जाने चली जाएंगी इंसान की, तो हमको ये करना पड़ेगा. So I think it's a big lesson that you have to be very, very flexible in your approach and then act accordingly. uh, Coming back to the first point about criticizing Gandhi ji, आजकल जो ये फैड हो रहा है, नो, गांधी जी को गाली देना, इफ यू जस्ट, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, मैंने इसे यूट्यूब पे सर्च किया, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ गांधी, ऐसे मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, एंड आई फाउंड सम 20 टॉप वीडियोस टॉकिंग अबाउट द डार्क साइड ऑफ गांधी, द डार्क साइड ऑफ गांधी, उनके सब, ही वाज गे एंड ही वाज कैरेक्टरलेस, और बहुत सारे वीडियोस जो यूट्यूबर्स ने बनाए उस पे, एंड दैट पुट अ स्माइल ऑन माय फेस. मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा. क्यों पता है? क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ा था, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, रॉड जटस्किन, और उसने बोला है कि द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ योर करियर इज पीपल नॉट टॉकिंग अबाउट यू एट ऑल. इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू वेदर गुड और बैड, दैट मीन्स आप कुछ तो कुछ कर रहे हो लाइफ में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस दिन जब ऐसा कोई मेरा वीडियो आएगा ना यूट्यूब पे, द डार्क साइड ऑफ बुकलेट गाय, मैं समझूंगा मैं मेरे सक्सेस की चोटी पे पहुंच गया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि गांधी जैसे लोग इतने बड़े हो गए, इतने महान हो गए पूरी दुनिया में, कि अभी उनके बारे में अच्छा क्या बोलना है यार. बट ही इज सो ग्रेट दैट यू कांट इग्नोर हिम. इट इज डिफिकल्ट टू इग्नोर हिम, तो चलो उसके बारे में बुराई करते. तो ऐसे करते करते उनकी बुराई शुरू हो गई. इट्स लाइक अमिताभ बच्चन, अभी वो इतने साल से सक्सेसफुल है, तो हम हार्डली कुछ बोलते कि हाँ अमिताभ बच्चन इज माय फेवरेट एक्टर. कुछ लोग बोलते होंगे, पर अभी क्या बोले, कितनी तारीफ करेंगे अमिताभ बच्चन की, ऐसा हो गया है, राइट? बिकॉज ही इज सो रेलेवेंट फॉर सो मेनी इयर्स, और एंड इज नॉट गोइंग डाउन, उसका करियर नीचे ही नहीं जा रहा है. तो वैसे ही कुछ होता है, जो लोग कुछ ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, या देन you find a reason to talk about him, because it is hard to ignore him, and because everybody is talking good about him, if I want to stand out, I'll stop talking negative about him. And that's what happened with Mr. Gandhi. Yeah. uh, you can anyway, you can interrupt me anytime, and I want to make this session a little interactive. If you have any interesting stories which very few people know about Gandhi, please you can raise your hand and you can unmute yourself and just narrate that story. ऐसा कुछ है किसी के पास कोई किस्सा गांधी जी के बारे में, या anything that you learned from Gandhi and you're applying it, and you're free to talk something negative also, I don't mind. As I said, holding two different views in your mind is a sign of intelligence. Anybody? I'll give you just a few seconds to unmute. Yeah, Saurav. अमृत,
वन थिंग मैंने बहुत अच्छा लगा, गांधी जी का एक कोटेशन पढ़ा था कि आर्थ प्रोवाइड एनफ टू फुलफिल एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। So that's one liner। मुझे 15-20 साल से मैंने कहीं डायरी में लिखता था अच्छा कोटेशन, मैं अब तक नहीं भूला और उसको मैं देखता रहता हूँ। इज अ वेरी वेरी ट्रू आज के दिन में भी। 100%, 100%। इसी से मुझे अब एक किस्सा याद आया, थैंक्स फॉर सेइंग दिस। अरुण गांधी ने एक बुक लिखी है, माय ग्रैंडफादर गांधी। जो अरुण गांधी इज द ग्रैंडसन ऑफ मोहनदास गांधी। एक बार क्या होता है, अरुण गांधी अपने दादाजी के पास जाता है और बोलते हैं कि दादाजी मेरी पेंसिल खत्म हो गई, मुझे नई पेंसिल ला के दो। तो गांधी जी बोलते हैं, अरे 2 दिन पहले तो तुम्हें पेंसिल दी थी इतनी बड़ी, उसका क्या हुआ? तो बोले कि नहीं, वो तो बस अभी इतनी बची थी, 2 इंच की बची थी, मैंने उसको फेंक दी। तो गांधी जी ने बोला कि जाओ और उस पेंसिल को लेके आओ। वो कुछ इतनी सी बची हुई रही, 2 इंच की पेंसिल। एंड अरुण सेड कि क्या है उसमें, क्या है, नया दे दो ना, वो बस फेंक दिया मैंने उसको बाहर कहीं। एंड ही इंसिस्टेड, अभी के अभी जाओ, रात के 8 बजे थे, बाहर अंधेरा था, टेक दिस टॉर्च, गो एंड हैंड दैट टाइनी लिटिल पेंसिल। उसको 2 घंटे लगे पेंसिल को ढूंढने में, और फिर फाइनली वो पेंसिल मिली और वो लेके आया। एंड गांधी जी सेड, नाउ सिट डाउन एंड आई वांट यू टू लर्न 2 big lessons of your life. First, in today's world where uh, it's a world of abundance, it's a world of mechanization where you can produce goods and services in masses. Yeah, यहाँ पे we end up consuming a lot, right? जरूरत से ज्यादा consume करते हैं. Don't you think it is violence against nature, because we are using natural resources even to manufacture one single pencil? Many natural resources are used by the man, so it is violence against nature. Yeah, point number one. And just because we can easily buy pencil because we have money, and pencils are available in abundance because of mass production, we end up over consuming them. Don't you think the people who are deprived of these resources, the less privileged, the poor, don't you think it is violence against them, against the less privileged? Yeah. And so we should always be frugal and thrifty when it comes to consuming things. And I have adopted this life from him. Although I do not adopt voluntary poverty, I don't say that I've adopted voluntary poverty like him, but I have learned to be very frugal. I've learned to keep my wants limited. Nothing on my body is more than 300, 400 rupees today. As where I was in stock market, having huge salary, not a single shirt on my body was less than 4,000 rupees. All Raymonds and Park Avenues and Blackberries. Yeah. So I think I am a standing example that money and respect has nothing to do with each other. Perhaps I have the lowest bank balance today, but you guys are paying me respect. और जब मैं स्टॉक मार्केट में था, तो और आपको पता है जब कोई गलत जाता है ट्रेड, तो कैसे गालियां पड़ती है क्लाइंट की। और पर मुझे पगार बहुत था, मुझे सैलरी बहुत थी. So I think I'm a standing example of this. Coming back to the story, as I said, Gandhiji was extremely frugal. एंड सेवाग्राम आश्रम में एक बार वो गुजर रहे थे, वो रोज एक चक्कर लगाते कि सबका सबका खैरियत देखते थे, जो भी आश्रम में शेल्टर ले रहे हैं. एक बच्चा वहां पे कुछ वॉश मशीन पे बर्तन धो रहा था और गांधी जी उसको देख रहे थे. लिटरली गांधी जी वहां पे रुके, उन्होंने धोती को ऐसे ऊपर बांध के गांठ मारी, एंड ही लिटरली टॉट हिम हाउ टू वॉश अ डिश विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर. और सब लोग उधर इकट्ठा हो गए कि गांधी जी खुद बर्तन धो के दिखा रहे. सो सी how conscious he was about these little things. Yeah, I think if we follow these things, so I think there will be a lot of abundance, not only in India but throughout the world. Yeah. एक इंटरेस्टिंग किस्सा था, अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था बहुत बढ़ रहा था इंडिया में. And Gandhi ji was determined to eliminate untouchability. छूत अछूत का जो प्रॉब्लम था, he wanted to eliminate from India. तो काफी कैंपेनिंग करनी थी पूरे भारतवर्ष में, तो उसके लिए फंड्स रेज करने थे. तो उन्होंने सोचा कि he will sell his autograph for 5 rupees. उस वक्त 5 rupees बहुत ज्यादा थे. And he got an amazing response.
तो एक बार ऐसी सभा में वो कुछ प्रार्थना की सभा थी और फिर उनका कुछ लेक्चर था, और लेक्चर के बाद अरुण गांधी का काम था कि सबके डायरीज लेके, जिस डायरी में गांधी जी की ऑटोग्राफ चाहिए लोगों को, वो डायरी या कागज है, उसके 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 अंदर 5 रुपए का नोट होना चाहिए. ये he has to ensure and bring that diary to Mr. Gandhi, and Gandhi used to give his autograph and give it back the diary and take those 5 rupees and put it in the box. तो अरुण ने सोचा कि मैं तो इनका ग्रैंडसन हूँ, मुझे क्या जरूरत है 5 रुपए देने की. तो उसने क्या किया, उस डायरी के बीच में एक अपने अपनी डायरी भी घुसा दी और उसमें 5 रुपए नहीं रखे. और फिर गांधी जी के पास तो डायरी पहुंच गई और उन्होंने अरुण को बोला कि अरे ये डायरी में 5 रुपए नहीं है. तो अरुण बोला कि हाँ, वो तो मेरी डायरी है, मैं क्यों दूं आपको 5? आप तो मेरे दादाजी हो, मैं तो आपके घर का इंसान आदमी हूँ. गांधी जी ने बोला कि नहीं बेटा, ये नियम सबके लिए लागू है. तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, ठीक है, पर तुमको 5 रुपए देने पड़ेंगे, और वो 5 रुपए तुम अपने माँ बाप से नहीं लोगे, खुद कमा के दोगे. और अरुण तो डटे रहा कि मैं तो नहीं देने वाला. मैं, वो बच्चा था, जिद पकड़ के बैठा. और गांधी जी बोले ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं. और फिर उसके बाद हर बार ग्रेट पॉलिटिकल लेवल के जो मीटिंग्स होते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू के साथ उनकी मीटिंग चल रही, हाँ, ये बीच में आता था, धड़ाम सर बोलता था दादाजी मुझे आपका दस्तखत दे दो, मुझे आपका ऑटोग्राफ दे दो. तो बार 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 डिस्टर्ब करता था. नेहरू जी बोलते थे कि अरे दे दो ना बच्चे को, क्यों परेशान कर रहे हो, वो बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है. तो गांधी जी बोलते थे कि डोंट वरी, वो हमारे बीच का एक प्राइवेट जोक है, आप उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो. और अरुण बोलता है कि एंड तक उसको सिग्नेचर नहीं मिली, ऑटोग्राफ नहीं मिली गांधी जी की. So this is how he was indiscriminate between his own family members and the outsiders. This is also, I think, part of character. इस किस्से से मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया ली. So I keep, what I do is I zoom out from the existing idea and try to apply somewhere else in other facets of life. और मुझे भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो है बुकलेट के, उसके लिए फंड्स रेज करने थे. तो मैंने सोचा कि मैं इतना तो बड़ा इंसान नहीं हूँ कि लोग मेरे ऑटोग्राफ के लिए 100 रुपया 200 रुपया देंगे. तो क्यों ना, इतने मेरे साथ मेरा 4000 बुक्स है बुकलेट हाउस में, उसमें से काफी बुक्स मैंने पढ़ चुके हैं. उस पर मेरे अंडरलाइंस है, हाईलाइट्स है, साइड नोट्स है, स्क्रिबलिंग है, मीनिंग्स लिखे हैं कहीं ना कहीं. हाउ अबाउट ऑक्शनिंग द बुक्स रेड बाय बुकलेट गाय? और मैंने ये आइडिया पहली बार इम्प्लीमेंट की गांधी जी के इंस्पिरेशन लेके. आई थिंक दैट फर्स्ट बुक वाज द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा, जिसमें मेरे पूरे मार्किंग्स, अंडरलाइन, हाईलाइट सब था बुक पे. और वो मैंने लिंक्डइन और फेसबुक पे डाल दिया कि ये बुक मैं ऑक्शन करना चाहता हूँ, जो फंड्स रेज होंगे वो मैं मिशन के लिए यूज करूंगा अगले प्रोजेक्ट के लिए. यू नो व्हाट द काइंड ऑफ रेस्पॉन्स आई गॉट? 200-300 रुपए की ब्रांड न्यू बुक मिल सकती थी अमेजोन को, ये लोग बिडिंग कर करके उसको 4000-5000 तक लेके गए. और अल्टीमेटली वो बुक को 5500 को बिक गई. और वो इंसान ने खुशी खुशी मुझे 5500 दिए. और मैंने उसको बोला कि आई नो यू आर नॉट गिविंग इट फॉर द बुक, इट विल बी इट विल बी इनसेन एंड स्टुपिडिटी टू गिव 5500 रुपीज फॉर अ यूज्ड बुक जिसका ब्रांड न्यू ब्रांड वर्जन आपको अमेजोन पे 300 रुपए को मिलेगा, उसी ओल्ड वर्जन के लिए आप 5500 दे रहे हो. Of course, you are giving for the higher purpose. And the biggest lesson I learned was that people come to you for why you do, not for what you do. जो हमने स्टार्टिंग में हमें पढ़ा था, याद है? People come to you for why you do, not for what you do. All right. And उसी बहाने मैं सोच रहा हूँ कि आज एक गांधी जी का बुक ऑप्शन करते हैं. If you really want to help the mission, you can come and आप चैट बॉक्स में बिडिंग चालू रख सकते हो. तब तक मैं बातें करूंगा. द फेमस बुक ऑफ गांधी जी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. अगर आपके लिए, बच्चों के लिए आप लेना चाहते हो, दिस बुक इज ऑलरेडी रेड बाय मी. वैसे काफी कॉपीज है मेरे पास इसके, गिफ्ट मिले हुए. सो इसकी कुछ मिनिमम बेस प्राइस कुछ 300 रुपया है. सो आई वुड लाइक यू टू स्टार्ट बिडिंग राइट नाउ ड्यूरिंग द सेशन, एंड लेट्स सी ये बिडिंग कहाँ तक जाती है. एंड आई विल बी हैप्पी टू गिव दिस बुक टू द हाईएस्ट बिडर, एंड दिस विल बी an opportunity for you to help the mission in 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 whatever form you can financially. Okay. Okay, Subro ने already 1000 rupees paid किया है, so thank you so much Subro.
and you can keep bidding in the text while I continue talking. काफी क्रिटिसिज्म गांधी जी में होता है कि ही वाज अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन. उन्होंने चरखा यूज करते थे और ब्रिटिश को बोलते थे कि नहीं ऑटोमेशन नहीं होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. आई टेल यू. सी, ही वाज नेवर अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन, ही वाज अगेंस्ट ऑटोमेशन. ओके, द लेटेस्ट बिड इज 1500 बाय मधुसूदन. ऑटोमेशन और मॉडर्नाइजेशन में फर्क है. He was always for mechanization but not automation. मतलब क्या? Mechanization और automation में फर्क है. And I trust me, he was such a visionary guy, such a visionary. He understood कि अगर automation से आगे क्या problem होने वाले, सब health problems होने वाले इंसान को, ये उनको 100 साल पहले पता था. I tell you what his mentality was. The best example of mechanization and not automation is bicycle और चरखा. चरखा में क्या होता है? अब mechanization is there to reduce the human effort, not to eliminate the repetitive human effort. चरखा में आपको repeatedly उसको घुमाना है, पर कहीं ना कहीं चरखा is also a machine, right? It is aiding your effort, it is helping to reduce your effort, but not eliminating human effort at all. For that he was standing. Whereas automation में क्या है? वो जो पूरी फैक्ट्री बनती है, बस आपको बटन ऑन करना है और सब अपने आप होता है और इंसान सिर्फ खड़ा रहता है और बटन्स को ऑन ऑफ करता रहता है. दैट इज ऑटोमेशन. एंड सी हाउ क्लियर ही वाज. तो ऑटोमेशन की वजह से ही आज हमारे पेट बाहर आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ना, हार्ट डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफ, कि बैठ के हम कंप्यूटर पे काम कर रहे, राइट? अगर वो वहीं पे हम रुक जाते, जहाँ पे मैकेनाइजेशन पे रुक जाते और ऑटोमेशन नहीं करते, तो शायद ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है आजकल, कैंसर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, वो सब नहीं होते. सो दैट काइंड ऑफ विजन ही हैड. एंड आई मेक श्योर दैट मैं कभी भी 15 मिनट के ऊपर एक चेयर में बैठता नहीं हूँ अनलेस आई एम इन अ सेशन. आई जस्ट फाइंड अ रीजन टू गेट अप, डू सम फिजिकल एक्टिविटी एंड अगेन सिट इन माई चेयर, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट मेड टू सिट for hours in a stroke. Our body is made to move. अगर हम चार पैरों पे थे पहले, तो we were made to crawl and run and hang and hop and jump and twist and turn. ये सब के लिए हम बने हैं. ऐसे this is not the natural position of our body. Chair is the biggest is the worst invention man has ever invented. Right. So he was against automation and not mechanization. All right. दूसरी इंटरेस्टिंग चीज उनके बारे में बोलना चाहता हूँ. या आई एम हैप्पी टू सी दैट द बिडिंग इज गोइंग ऑन. या आई थिंक ये जो आजकल गांधी जी को एक गलत इंसान बोला जाता है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान गलत होता है या सही होता है. हाँ, उसके एक्शंस गलत हो सकते हैं, उसके विचार गलत हो सकते हैं, पर इंसान कैसे कोई गलत हो सकता है? कभी ऐसा सुना है जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, डॉक्टर आके बोलता है कि बधाई हो, बेटा हुआ है, पर गलत इंसान पैदा हुआ है, देश को इससे खतरा है. कभी सुना है आपने? नहीं. अगर इंसान गलत इंसानी कंसेप्ट होती तो वो पैदाशी समझ में आ जाता ना हमको. इसका मतलब क्या, आगे जाके वो इंसान क्या काम करता है, उसके विचार क्या है, वो गलत हो सकते हैं, इंसान कभी गलत नहीं. राइट? तो फिर वो गांधी जी हो या सद्दाम हुसैन हो, वो इंसान गलत नहीं थे. हाँ, सद्दाम हुसैन के कुछ व्यवहार गलत थे, कुछ विचार गलत थे. राइट? और जब इंसान इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या उसको गलती करने का अधिकार नहीं होता है? या वी ऑल से दैट टू एयर इज ह्यूमन. या सो इवन गांधी जी वाज अ ह्यूमन. इफ ही मेक्स अ मिस्टेक, व्हाई वी लेबल हिम एज अ धब्बा on Indian history? Yeah, because the repercussion of his mistake was huge, because he was grown such a big person that doesn't entitle him not to make any mistake. And who says that partition was a mistake? Maybe आज जितना भी भाईचारा दिख रहा है हिंदू मुस्लिम में, शायद उससे भी बदतर चीज होती है अगर पार्टीशन नहीं होता. I'm just thinking loud. Okay, I don't want to get into any
political talks on this. But I would say that you can't go back and revisit the history of India and check कि अगर partition नहीं होता इंडिया का तो आज क्या हालत होती. We don't know. We can't check it, right? In retrospective effect. Yeah. या और किसी को कुछ शेयर करना है यहाँ पे? Please do share. There were some questions in the chat box. Yeah. That had Can you come. please read out? Yeah, one was doing the right things when everyone is watching is honesty and doing the right. So there was a discussion about whether it is integrity, honesty, or character. So, and then there were questions like Gandhiji had personal preferences and prejudices. Can you highlight some? And we have been hearing many things about the dark side of Gandhi. Is it true or not? So basically, if you have some points to talk about, one is character versus integrity and the definition. And then we have some people who have raised hands. I think I think I have touched upon that thing about the dark side. It will be our failure to learn from a person who is so great and just focus on those small amount of mistakes that he made. So I think it will be a complete waste of time. As I said, criticism and learning can't happen at the same time. If a person is successful than me, even by 1%, I will not criticize him. It will be complete. फिर वो राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो, मोदी हो, बराक ओबामा हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, I am nowhere near to them. Then how does it give me the right to talk ill about them? Are you getting my point? I should always be in a learning mode. Ignore the dark side, the wrong side of that person, and just focus on what can I learn from him, because there are thousands of paths to the same destination. Success has got thousands of paths. No? Roger Federer and Tiger Woods, दोनों के career paths देखो कितने अलग थे. दोनों equally successful है. Tiger Woods in golf, Roger Federer in tennis. Tiger Woods के पिताजी ने उसको 6 महीने का जब था उस वक्त गोल्फ का स्टिक हाथ में दिया था. सुपर स्पेशलाइजेशन, अर्ली स्पेशलाइजेशन. उसको गोल्फ और कुछ दिया ही नहीं लाइफ में, बस गोल्फ खेलना है. And he became number 1 in golf. Roger Federer, completely different. He was a late specialist. He was a generalist. Till the age of 10 years, he did not hold tennis racket. उसके पहले वो फुटबॉल खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, सब खेलता था. फिर at the age of 10 years, for the first time, he held a tennis racket. And see, he's the king of tennis court. तो कितना अलग है देखो दोनों का path. But both have achieved equal success. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि thousands of people who have achieved something more than me, who are happier than me, spiritually, monetarily, whatever it is, then it is my moral duty to learn the best things from them, find the common things amongst all these interesting personalities, and ignore the bad side. I think ignoring is the best criticism. हाँ, होता क्या है, our brain is naturally wired to focus on negative things. हमको अच्छा लगता है ना थ्रिलर, कॉन्स्पिरेसी वीडियोस के आप व्यूज देखो कितने करोड़ों में व्यूज है. और ये जो अरुण गांधी का जो मैंने बोला है ना, ग्रैंडफादर, उसका एक बहुत अच्छा लेक्चर है अरुण गांधी का अपने ग्रैंडफादर के ऊपर. उसके व्यूज कितने पता है? 200 व्यूज है सिर्फ, ओनली 200 व्यूज. तो हमको डिसाइड करना है कि हमको कहाँ जाना है. हमको वो करोड़ों व्यूज वाले के जैसा देखना है या we have to become rare because the world rewards the rare. So let's not get into the dark side of him. अमृत चंद्रशेखर जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, काफी टाइम से वेटिंग में है. जी चंद्रशेखर. Am I audible? Yes, yeah. Yes, absolutely. I am sorry, since you said that even negative things we can talk about him. Yeah. Because we have got a tendency to make demigods out of he was a great, no doubt about it, and I had a great respect for him. But I too, when read some of his utterances and part of history, see, British always treated Nehru and Gandhi with kid gloves. They were put in palaces and good places. He stayed a lot of time in Aga Khan Palace in Pune. Kasturba Gandhi died there. So
but Savarkar was sent to Andaman for hard labor for more than a decade. So who were the friends of British and who were the enemies? See, that raises a great concern. They, Nehru and Gandhi never had even a lathi charge on them. So that creates a, confusion. The other thing is, even when partition took place, he was very much, in giving extra to Pakistan, even monetary benefits. And third is it is very well documented that when after the partition, Hindus came as refugees and they were staying in Punjab and Delhi mosque for temporarily, Gandhi ordered them to be evicted from there. So they came on the road. So I really don't know how to understand this person. Then the worst is, if you read the history of Mopla massacre and Naukhali massacre, Hindus were being massacred, raped, and at that time his utterances were that Hindus should not resist, they should suffer, और सोना जैसा अग्नि से शुद्ध होके बाहर आता है ना, ऐसा हो जाएगा. That really, makes me, think something other way. So what is this? We are unable to understand this person. Even at the time of the power struggle in Congress, he, in a way now we can say that he yielded to the blackmail of Nehru. In Congress Working Committee, Vallabhbhai Patel had a huge majority, but Nehru insisted on becoming the next Prime Minister, and in spite of a huge majority behind Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi yielded. What does it show? Just comment, that's all that I wanted to mention. Yeah, I agree. I've read all about these things. And who am I to comment on this? I think you're a well-read man and you have put it so nicely. And this is what I want to learn, that you started with a very good lot of respect for Mr. Gandhi and then methodically laid down your criticism. This is what is needed. Yeah, even though Netaji and Gandhiji had opposing views, they had immense respect for each other. If you go back and read their letters to each other, an amazing amount of respect. And this is what we should learn, that we may not agree on a point, but we can agree on our disagreements, which is not so easy, which I think is not happening in today's political era, right? जहाँ पे अदब के साथ एक दूसरे की criticize की जाती, with lot of respect, that yes, I disagree with your opinion, but I respect you a lot. And you can make out from the old letters written by Vallabhbhai Patel, Netaji, Nehru, Gandhi to each other. Yeah, and this I think should be changed, and somewhere he used to call it a spiritual politics, yeah, which has gone for a toss these days. But I respect Mr. Chandrasekhar, your views, and I think मैं बहुत छोटा इंसान हूँ इसके ऊपर बात करने के लिए. I still have to gather a lot of wisdom and knowledge, and then put a comment on it. Maybe after a few years, so I would reserve my comment on this. That reminds me a very interesting story because of you. He was always in favor of going back to the old behavior. मतलब वो क्या बोलते थे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लग्जरीज में इतना खो जाते हैं कि वो नेसेसिटी हो जाती है. हमको लगता है कि वो नेसेसिटी, बट एक्चुअली इट इज स्टिल अ लग्जरी. फॉर एग्जांपल फ्रिज, हमको लगता है कि इट इज अ नेसेसिटी, बट इट्स एक्चुअली अ लग्जरी. फ्रिज के बिना भी हम जी सकते हैं, राइट? सो आई प्रैक्टिस दिस टू कीप माई सेल्फ ग्राउंडेड. व्हाई नॉट हैव अ कोल्ड वाटर शावर वन डे? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गीजर मत लगाओ, बट बाय गोइंग बैक टू द ओल्ड बिहेवियर, स्पेशली जब हजारों लोग दुनिया में ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं, तो क्यों ना हम भी कभी नहाए? क्यों रोज गर्म पानी चाहिए? क्यों ना एक दिन बिना तकिए के सोने की कोशिश करें? हाँ ठीक है, थोड़ा गर्दन पे पेन आएगा, 1-2 दिन तकलीफ होगी, बट लेट्स राइट आउट, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आई लाइफ में तो विल बी ग्राउंडेड कि सर के नीचे तकिया नहीं तो भी चलेगा. एक दिन कभी बिना चादर के सोने की कोशिश करो. मैंने किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा.
एक दिन मैंने बिना तकिए सोने की कोशिश की, अचानक से ठंडे पानी से नहाने की कोशिश की। एक बार वो IRCTC पे टिकट बुक करने की हमको आदत है, कभी कभी मैं जानबूझ के स्टेशन पे जाके लंबी लाइन में खड़े रह के टिकट खरीदता हूँ, जस्ट इन केस। Okay, I know that it may not find sound so logical, but I always go back to the old behavior again and again to keep myself grounded. एक ग्रीस में पहले एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस हुआ करता था, जब कोई वॉरियर युद्ध पे जाके लड़के आता था और जीत के आता था ना, तो उसके बहुत तारीफ होती थी, उसका स्वागत होता था, तालियां बजती थी, तो जो जश्न मनाया जाता था। और फिर दरबार में एक वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा होता था। एक गरीब किसान आता था और वो जो जीत के आया हुआ वॉरियर है ना, उसके कान में उसके बोलता था, यू आर जस्ट अ मैन, यू आर जस्ट अ मैन, जस्ट टू मेक श्योर टू कीप हिमसेल्फ ग्राउंडेड, कि तू कितना भी दुनिया जीत ले, यू आर स्टिल अ मैन, सो बी ग्राउंडेड। और एक बड़ा लेसन मैंने सीखा, ये बुक गांधी जी के ऊपर ही थी। और इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ठीक है चलो, अभी आई एम नॉट अ वॉरियर की किंग जहाँ पे जीत के आया हूँ और मेरे कान में कोई बोलने वाला नहीं है। सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट एक्टिविटीज जो करने से मेरे ईगो की धज्जियां उड़ जाए। ऐसे कुछ एक्टिविटीज करूँ जे करने के लिए मेरा ईगो बीच में आता है। तो फिर आई फाउंड दैट क्लीनिंग माई शूज और क्लीनिंग माई टॉयलेट, टॉयलेट मतलब लिटरली द पॉट, द टॉयलेट, वो काम मैं कभी अपने भाई को डेलीगेट नहीं करता। कि कितना भी मैं बाहर जाकर टेड टॉक स्पीकर हूँ, आइकॉन, यूथ आइकॉन हो जाऊं मैं, हायत और इस पे 7 स्टार होटल में मेरी बुकिंग हो चुकी है, बिजनेस टिकट से मैं फ्लाई कर रहा हूँ, लोग मुझे बुला रहे हैं दुबई, अबू धाबी, वापस घर पे आके मुझे क्या करना है, मेरा टॉयलेट धोना है। एंड दैट विल ऑलवेज कीप मी ग्राउंडेड। आई एम नॉट इंसिस्टिंग यू दैट यू शुड ट्राई, बट आई डू दिस एंड इट रियली हेल्प्स मी। कि कितना भी मैं 5 स्टार होटल में रहने के बाद भी, अगर मुझे पता है कि घर जाके मुझे मेरा टॉयलेट का कमोड साफ करना है, तो फिर सब जो हवा है सब निकल जाती है, एंड आई अगेन कम बैक एंड टॉक टू माई सेल्फ, आई एम जस्ट अ मैन। ठीक है, बुकलेट का है वगैरह ठीक है, बाहर तारीफ ठीक है, घर आके आई एम अगेन अ सिंपल मैन, अ बॉय नेक्स्ट डोर, दैट्स ऑल। सो आई थिंक दिस इज कीपिंग योरसेल्फ ग्राउंडेड हैज टू बी अ डेलिबरेट एक्ट, क्योंकि बाद में पता ही नहीं चलता है कि हमारे हवा दिमाग में हवा कब चली गई। Yeah, and their ego. Yeah, I just recently read a book called Ego is the Enemy by Ryan Holiday. मैंने वो बुकलेट में भी वो कवर की है, Ego is the Enemy by Ryan Holiday, और उसमें भी इसका जिक्र है। सो गांधी जी तो कुछ ज्यादा ही हद पार करते थे इसके लिए, जस्ट टू गेट रीड ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, मतलब फूड का जो जो आपने जो जबान के जो अट्रैक्शंस है, मीठा खाना, चटपटा खाना, वो उनको खत्म करना था। बिकॉज ही वाज अ पॉलिटिशियन ट्राइंग टू वॉक द वॉक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। या हमको लगता है कि ही वाज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ही नेवर सेड दैट, ही सेड आई एम अ पॉलिटिशियन हु इज ट्राइंग टू वॉक द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें करते थे जो हमको तो हजम ही नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब कस्तूरबा जी कुछ अच्छा खाना बनाती थी, गुलाब जामुन और कुछ अच्छा अच्छा, तो उस सब में वो नीम का पाउडर मिक्स करती थी और फिर खाना खाती थी, जस्ट टू गेट रीड ऑफ ऑफ हिज अट्रैक्शन फॉर द टेस्टी फूड। आई नो इट साउंड्स क्रेजी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसको और करूंगा भी नहीं शायद। बट या ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से मैं बोल सकता हूँ, देयर विल बी नो एंड टू इट। दांडी मार्च में सो देयर वर ऑलमोस्ट सब कुछ 78 लोग चुने थे गांधी जी ने दांडी यात्रा के लिए, यू नो द सॉल्ट एक्ट एबॉलिश करना था। उसमें कुछ 2 बच्चे भी थे, और उन्होंने बहुत, ही हैड सिलेक्टेड वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्की वॉक, कुछ भी हो सकता था, जान भी चली जा सकती है। वहाँ पे घोड़े और पालकी की भी अरेंजमेंट थी, पर गांधी जी ने कभी उसको यूज नहीं किया। वो बोले कि ये 34 किलोमीटर का वॉक तो मेरे लिए बस चाइल्ड्स प्ले, मैं ऐसे ही चल लूंगा उसको, बिकॉज फॉर हिम वॉकिंग वाज द ओनली एक्सरसाइज। ही नेवर एक्सरसाइज सेपरेटली, बट ही वाज वेरी फिटनेस कॉन्शियस एंड वॉकिंग वाज हिज फेवरेट एक्सरसाइज। वो बहुत चलते थे, बहुत, और बहुत तेज चलते थे। अब अगर पुराने वीडियोस देखोगे, वाज अ वेरी फास्ट वॉकर। और वहां पे एक इंसान ने रिक्वेस्ट किया था, मुझे भी आना है आपके साथ दांडी यात्रा पे, बट ही उसने एक मर्डर कमिट किया था, ही वाज अ मर्डरर, बट उसकी सजा उसने भुगती थी। ही रिग्रेटेड अबाउट हिज एक्ट्स। और सब लोग बोलते थे कि इसको मत लो, अपना नाम खराब हो जाएगा, दांडी यात्रा फ्लॉप हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे। पर गांधी जी सेड नो,
अगर उसने गलत काम किया है और वो पछता रहा है, उसको उसका प्रायश्चित करना है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। एंड सो उस आदमी को भी उसने गांधी जी ने ले लिया दांडी यात्रा में, एंड देयर वर टोटल 78 पीपल हु वॉक्ड दैट दांडी मार्च. Anything you would like to interpret and comment something? I think it's 8:15. We have talked in length. So as a closing comment, Dharmendra, could you just check what was the last bidding? It's from Ajay Gupta 2500. 2500. Wow. Thank you so much, Ajay. So And let's he's asking declare this. how he can transfer this amount. Please. Sure. Yeah. I'll just connect me to Mr. Ajay after the session. Give me his number and I'll follow through. Yeah. Thank you so much, Ajay. That's a big help, and I'll be happy to give this copy to you. So happy reading. Any other questions? Is Vikas, is Swami wanting to ask a question? Is he logged in through somebody else's? I don't know. I thought. या पहले थोड़ी देर के लिए मैं अजय जी को अनम्यूट करना चाहूंगा. He is a winner of today's bid. Yes, Ajay ji. He's not. Not mute. He's muted. Yeah. Hi, Amrut. I'm Ajay here from Bangalore. Hi, Ajay. Yeah. When you started the WhatsApp sessions, long back, I was part of that group. Okay. Wow. Probably a couple of years back, you were giving the summaries in WhatsApp, and you had some limited 100 or 200 people in one group, and you were giving it out, and that was long back. And I really love or like that, punchline, what you keep saying. Why I do is more important than what I do. I think, this is one learning which is very, very deep. When I say why I do, it's about the other person. And definitely, even the universe, everybody will be supporting us. Correct. And if it is about me, when any interaction or in any transaction, then it's not going to be as successful as when you're looking at how to give value, and when you think about the other person, it's basically win-win. Right. And today's bid is only to support your effort. So I'll directly connect with you. I have your number. Thank you so much, Ajay, for your generosity. It means a lot. It means a lot, really. Thank you so much. Happy reading. तो दोस्तों, आप अजय जी को जब भी सुनते हो, हर दूसरे तीसरे मिनट में एक सेंटेंस उससे मुंह से निकलता है, जब दिल कहता है वाह, मजा आ गया सुन के अंदर. एवरी 2-3 मिनट्स के बाद कोई एक सेंटेंस पर आपके मुंह से निकलता है. आई डोंट नो यू आर कॉन्शियसली आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं एडमिट करना चाहूंगा कि हर दूसरे तीसरे मिनट के अंदर कोई एक सेंटेंस आप बोलते हो जो दिल को छू जाता है. तो दोस्तों, ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्यों ना ये जो बेनिफिट अमृत जी का हम सुन रहे हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स तक हम पहुंचाएं. जो मिशन है अमृत जी का, मेक इंडिया रीड, तो हम लोग 100, 150, 200 लोग हर गुरुवार को अमृत जी को सुनते हैं. नाउ ऑनवर्ड हमने एक नया फैसिलिटी शुरू किया है लोगों के लिए. आपको यूट्यूब का लिंक दिया जाता है कि हर चौथे गुरुवार को आपको जो यूट्यूब का लिंक मिलेगा, अमृत जी सेशन के अंदर आते हैं, आपके मैक्सिमम क्लाइंट्स तक इस लिंक को आप पहुंचाए, ताकि जो बेनिफिट आपको मिल रहा है हमारे क्लाइंट्स को भी मिले. और जैसे मैंने कहा कि हर दूसरे तीसरे मिनट के अंदर या कोई एक सेंटेंस आपका थॉट प्रोसेस बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकता है, तो आपके क्लाइंट्स की भी सोच बदल सकता है. और क्या पता कौन सा क्लाइंट 5 साल के बाद, 10 साल के बाद में आपको क्रेडिट दे कि यार आपने अमृत जी के सेशन में मुझे बुलाया था और मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया, लाइफ के लिए सोचने का नजरिया बदल गया, और आज मैं किस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूं. तो क्यों ना इस बेनिफिट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए. अमृत जी जी बिल्कुल. तो इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से अमृत जी आपके सामने लेके आते हैं. उनका शेड्यूल क्या है हमको पता है, और 1 साल के लिए जब उन्होंने कमिटमेंट दिया है, तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों तक इस बेनिफिट को हम पहुंचाए. अमृत जी का जो नॉलेज है, हमको पता है कि गांधी जी की जो किताब शायद 500-600 पेज से ज्यादा बड़ी किताब होंगी शायद, जो अमृत जी साथ में लेके बैठे हैं अभी, और आपने उनके किस्सों को हार्डली 1 घंटे में उनको आपने सुना है अभी.
आप दिल पे हाथ रखिए, बताइए कितने लोग 500-600 पेज की किताब पढ़ना पसंद करेंगे? आप पढ़ भी पाएंगे? हम लोग शायद काफी लोग तो इस किताब को देख के डर जाएंगे, यार नहीं पढ़ना है। तो जब इतनी समरी आपको आधे घंटे में मिल रही है, 1 घंटे में मिल रही है, और आपके घर बैठे मिल रही है, बिना एक क्लिक पे मिल रही है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू, पाठशाला जो कोशिश कर रहा है इस मिशन को आगे ले जाने के लिए, आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन, मैक्सिमम लोगों के मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाए, और कुछ दिनों तक आप कोशिश करें, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवाना है, थोड़ा इंसिस्ट करना है आपके क्लाइंट्स को, ऑडियंस को, कि सर एक प्यारा सा किताब है अमृत जी का, 15 मिनट का वीडियो, जरा देखिए एक बार। 2-3 महीने अगर आप थोड़ा दिल से इस कोशिश को करोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा, वो बंदा दूसरे 10 लोगों को बोलेगा, यार ये एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया है, मुझे मजा आ रहा है, बहुत कुछ मैं सीख रहा हूं, तू भी डाउनलोड कर और कुछ किताबें पढ़ने की कोशिश कर। तो बोलते ना कि हमारे गुजराती में कहावत है कि किसी को उंगली भी दिखाते हो तो आपको पुण्य मिलता है। तो हमको यही करना है, जो पुण्य का काम अमृत जी कर रहे हैं, आपको सिर्फ उंगली दिखानी है कि ये ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन अकेला अमृत क्या करेगा? ये भी कहते हैं ना, हम मजाक मजाक में कहते हैं ना, अकेला मोदी क्या करेगा। तो हम यहाँ भी कहेंगे अकेला अमृत क्या करेगा। तो जब मिशन में हम जुड़े हैं अभी अमृत जी के साथ में, तो दिल से हम इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। अमृत जी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के साथ में जी। थिंक आपको एग्री भी करोगे इस बात से? जी बिल्कुल बिल्कुल, 100%। आपकी वजह से बहुत मदद हो रही है मिशन मेक इंडिया रीड के लिए। काफी वन मोर अनाउंसमेंट, एक बिल्डिंग अजय गुप्ता जी जीत चुके हैं ऑलरेडी। Second name is Vikas Vani. I am also contributing in the same amount with you. This is Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. As a closing note, एक आखिरी मैसेज गांधी जी का देना चाहता हूँ, which is about non-possession. He was extremely frugal, thrifty. आजकल जो नया वर्ड आया मिनिमलिज्म यूएस से, गांधी जी नॉन पोजेशन तो बहुत सालों से कर रहे थे, तो वहां से एक आइडिया लेके, इंस्पिरेशन लेके मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरी जाती जिंदगी में। तो जस्ट टू एंश्योर कि वी डोंट अक्यूमुलेट थिंग्स इन आवर हाउस, जो टेंडेंसी रहती है ना कलेक्शन सिंड्रोम, बस चीजें खरीदते जाओ और वो पड़े रहते हैं घर पे ना, ये गैजेट वो गैजेट। तो बस ये एक नुस्खा है जो मुझे काफी हेल्प करता है कि जब भी कोई नई चीज मैंने घर पे लाता हूँ, तो उसका एक इक्विवेलेंट चीज घर के बाहर जाना चाहिए। अगर एक नई टी शर्ट मेरे घर के अंदर आ रही है, तो कोई पुरानी टी शर्ट घर के बाहर जानी चाहिए। अगर कोई नया शूज आ रहा है अंदर, तो उससे इक्विवेलेंट अमाउंट कोई भी वस्तु घर के बाहर जाना चाहिए, ताकि एटलीस्ट एक बैलेंस रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गांधी जी की तरह आप बिना शर्ट के रहो, वो तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, पर दिस रियली वर्क्स। एंड देन हमको पता चलता है कि जो थिंग्स जो अक्यूमुलेट होते हैं घर पे, वो नहीं होगा, क्योंकि वो अगर चीजें अक्यूमुलेट होती है तो उस साफ सफाई के चक्कर में, उसको मेंटेन करने में, उसको सब्सक्राइब करने में, वो रिचार्ज करने में इतना टाइम जाता है, और वो टाइम हम लोगों को नहीं देते। अभी क्या हो रहा है, वो टाइम बच के आई थिंक द थिंग्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय पीपल, and my doors are always open, that people are coming me and I'm giving them lot of time because I'm not focusing on things now anymore. So I think this can be practiced by all of us. Thank you very much, Amrut ji. Shreya, you can come on the screen again. Yes, sir. I think it was a lovely session. Thank you so much. We got to learn so many things about Gandhiji, so many lessons from Gandhiji, which we can implement in our life, in our day-to-day life. And we're really, really grateful to have you, sir, in our session, to have you as a part of our Financial Pathshala sessions. Yes, so with this, we have come to an end of the session, and we will be meeting you all next week on Thursday.